Welcome back, everybody. This is our second class in JEE Mains previous year questions of chapter Electric Charge and Field for class 12th. Before this video, in this series, we have made one video, and that video can be easily found on our YouTube channel's playlist section. We have also started similar series for NEET previous years, so you can also check those videos out. And again, if you found these videos useful, then you can press the like button, share them as much as possible, and subscribe to our channel. Also, if you want to support us financially, then you can scan any of these QR codes in front of your screen and donate us with whatever amount you want. With your donations and your support, we will be able to keep on making these videos and keep on bringing you such a content. So with this, let's start today's video. And in previous video, I think we have completed 4 or 5 questions something. Okay, so these were, I think, 7 questions. Yes, we have completed up to this, and today we will go further. We will start with question number 8. Let me adjust the things. Right. Okay, so start. Charge Q is placed at each of the opposite corner of a square. A charge small q is placed at each of the other two corners. So if the net electric force on Q is 0, then we have to find the ratio of capital Q by small q. So basically we have just a square. So let me draw a square here. Here we have a square, and we have placed positive q charge. So this is positive q, and this is also positive q on the opposite corners of a square, and small q charge on the other two corners. So this is q, and this is also small q. Now, as per mention that this is a square, so all dimensions are equal to a. So this is a, and this is also a. Now, as per given that total net electric force on Q is 0, so we will take this charge Q for our calculation. And now net force on this charge we can find out. So I'm moving this Q here so that I can draw the forces, and this line also. And let's take distance as x, because we are also writing Q and A looks similar in my handwriting. So that's why I'm taking distance as x. Now, assuming all of these are positive charge, this Q should be repelled, because this Q and this Q are of same nature. So here, in case of these two charges, there will be a repulsive force on this Q charge. So direction of that repulsive force will be something like this. Here, something like this. Let me draw a proper vector. It will be like this, because both Q are of same nature. Now, as per mention, that net force on it is zero. So the forces due to these two Qs, these two small Qs, must cancel this force, and forces due to these two Qs should be in opposite direction. So forces due to first will be something like this. Due to this small q, force of attraction, or we can say electric force, should be something like this. And due to this small q, force should be something like this. And now both of these forces are of opposite direction of this, we can say orange force, or due to capital Q. So as a result, they will provide a net resultant force in this direction, and this force
will cancel with this force, and only then in that scenario we can say that net force on Q is 0. Okay, so first we will find force on capital Q due to capital Q, and then we will equate that force with force on capital Q due to this small q and this small q and their resultant force. Okay, so that's our basic process for this question. So let's start. Okay. So force here हम यहाँ पे जो F यूज कर रहे हैं that is all each time we are using force for Q particle or Q charge. Now force on this Q charge due to this Q charge is given by K Q into Q divided by distance square, and this distance will be x square plus x square whole under root or root 2x square. So it is given by K Q square by 2x square. Now force on this charge particle due to these small q's. नाउ जो ये वाला फोर्स आपका ये किस में है, ये एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो आप इसको कंपोनेंट वाइज लिख सकते हो, एंड दो डिस्टेंसेस हैं वो एक्स ही रहेंगे. सो फर्स्ट वाले के लिए जब ये एक्स वाला हम फोर्स ले रहे हैं तो ये हो जाएगा के क्यू कैपिटल स्मॉल क्यू एक्स स्क्वायर इंटू आई इन नेगेटिव, बिकॉज ये वाला फोर्स नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, के क्यू क्यू एक्स स्क्वायर जी. और इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, दैट विल बी रूट 2, बिकॉज दोनों सेम वेक्टर्स है, सेम एम्पलीट्यूड है, सो इट विल बी जस्ट रूट 2 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू. अगर आपने वेक्टर्स किए हैं तो अगर आपके पास ए आई माइनस ए जे है तो आप उसका वेक्टर सम करोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट विल गिव अस रूट 2a. सो रूट 2 टाइम्स दिस. नाउ एज ए मैग्नीट्यूड जो आपका ऑरेंज फोर्स है, ब्लू फोर्स, इसको मैग्नीट्यूड वाइज एग्जैक्टली कैंसिल करना चाहिए. सो दिस फोर्स जो ये वाला फोर्स है इन मैग्नीट्यूड ये इस फोर्स के इक्वल होना चाहिए. So let us write k q square 2x square is equal to root 2 k q x square. So x square से x square कैंसिल होता है, k से k कैंसिल होता है, q से q कैंसिल होता है, और हमारे पास जो स्मॉल q है उसकी वैल्यू आ जाती है q by 2. एंड साथ में हमारे पास यहाँ पे रूट टू भी है, तो रूट 2 भी इधर चला जाएगा. एंड हमें रेशियो निकालना है कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू. सो कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू हमारे पास आता है 2√2. और अभी यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने अजम्पशन ली थी कि इन दोनों का जो फोर्सेस है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, और इन दोनों का फोर्स क्या था, कैपिटल क्यू का फोर्स रिपल्सिव था, यानी कि सेम नेचर था चार्जेस का, और जो दोनों स्मॉल क्यू हैं उनका फोर्सेस अट्रैक्टिव है, यानी कि जो चार्जेस हैं वो एक्चुअली किस नेचर के होंगे, अपोजिट नेचर के होंगे. तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए स्मॉल क्यू को, तो ये जो वाला चार्ज है जो नेगेटिव होना चाहिए बाय डिफॉल्ट. तो अगर ये नेगेटिव होना चाहिए तो यहाँ पे भी हमारे पास एक नेगेटिव साइन आएगा, और मैग्नीट्यूड में भी एक नेगेटिव साइन आ जाएगा. सॉरी, नॉट इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एज इट इज रहेगा फोर्स का. और जब हम यहाँ पे इनका रेशियो निकाल रहे होंगे तो रेशियो में ये चार्ज एक्चुअली नेगेटिव है, दैट्स वाई यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन देखने को मिलेगा आंसर के अंदर, और यही हमें मिलता है ऑप्शन डी में देखने को. सो यहाँ पे ऑप्शन डी है जो दैट विल बी द राइट आंसर. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
if GE and GM are the acceleration due to gravity on the surface of the Earth and the Moon respectively, and if Millikan's oil drop experiment could be performed on the two surfaces, one will find the ratio electronic charge on the Moon and electronic charge on the Earth will be. सो ये बोला गया है कि आप एक्सपेरिमेंट करते हो और वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मिलता है, अर्थ के ऊपर आप चार्ज निकालते हो इलेक्ट्रॉन का, और मून के ऊपर आप चार्ज निकालते हो अर्थ का, सॉरी इलेक्ट्रॉन का, तो दोनों का रेशियो क्या रहेगा। सो एज वी नो कि अगर आप अर्थ से मून पे मूव करते हो तो क्या चेंज होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटी चेंज हो जाती है और अप्रोक्सीमेटली 1/6 हो जाती है अर्थ का। बट जो चार्ज है, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एंड आज पर आवर अंडरस्टैंडिंग, जो हमारे फिजिक्स के रूल्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, जो एक्सपेरिमेंट है या कि जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है उसकी मेजरमेंट आप वर्ल्ड में, गैलेक्सी में, यूनिवर्स में कहीं पे भी करेंगे तो वो चेंज नहीं होता। मीन्स जो चार्ज ऑन अर्थ होगा और जो चार्ज ऑन मून होगा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, दोनों इक्वल रहेंगे। सो उनका रेशियो एक ही आएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So two spherical conductors B and C having equal radii and carrying equal charges on them repel each other with a force F kept apart at some distance. A thin spherical conductor having same radius as of B but uncharged is brought into contact with B, then brought in contact with C and finally removed from the both new forces of repulsion. तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये आपको हमारी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक, हियर इट इज। सो ये एग्जैक्टली जस्ट सिमिलर क्वेश्चन है और आंसर भी सेम आता है 3F/8। आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके इसको कवर कर सकते हैं कि कैसे इसमें चीज़ें होती हैं, कैसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। हम इसका जस्ट ब्रीफ आइडिया आपको यहाँ पे दे देंगे कि क्या होगा। कि सपोज कीजिए आपके पास बी एंड सी, ये बी कंडक्टर है और ये सी कंडक्टर है, और इनिशियली इनके पास प्लस क्यू चार्जेस हैं, दैट्स वाई वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब आप क्या करते हैं, एक कंडक्टर लेके आते हैं, अनचार्ज कंडक्टर। तो जब आप एक अनचार्ज कंडक्टर बी के साथ कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो सपोज ये बी है और सेम कंडक्टर है, वो आइडेंटिकल है, इसको हम ए नेम दे देते हैं और इसको बी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। बिकॉज दोनों आइडेंटिकल हैं और इसके ऊपर चार्ज 0 है इनिशियली और इसके पास चार्ज क्यू है इनिशियली, तो क्या होगा, जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इसका चार्ज Q/2 हो जाएगा और इसका चार्ज भी Q/2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और अब इसको कनेक्ट कर दिया जाता है किसके साथ, सी कंडक्टर के साथ। अब जैसे इसको आप सी के साथ कनेक्ट करते हैं, फिर से वही रूल अप्लाई होगा, बिकॉज दोनों आइडेंटिकल हैं, तो उस सिनेरियो में चार्ज हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और ये तभी वैलिड है जब दोनों आइडेंटिकल हैं। अगर इनकी शेप अलग अलग होगी तो आपको कैपेसिटेंस के हिसाब के साथ पोटेंशियल के लिए सॉल्व करना होगा कि इक्वल पोटेंशियल होगा, उसके हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। बिकॉज दोनों आइडेंटिकल हैं, मीन्स तीनों आइडेंटिकल हैं, तो अगर आप इनको टच करवाते हैं या एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में लाते हैं वायर के थ्रू भी, तो इनके चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इस सिनेरियो में इस पर Q/2 चार्ज है और इस पर Q चार्ज है, तो आप दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है 3Q/4। तो आफ्टर कनेक्शन जो चार्जेस हो जाएंगे दोनों के, दिस विल बी 3Q/4 एंड दिस विल आल्सो बी 3Q/4, और फिर आप इस कनेक्शन को ड्रॉप कर देंगे। और अब आपको इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है सेम डिस्टेंस के लिए। तो जब आप उसको सोल्व करेंगे तो आंसर आपका 3F/8 आता है, जो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो 3 charges
Q1 plus Q2 and minus Q3 are placed as shown in the figure. The x component of the force on Q1 is proportional to। तो ये बताना है कि Q1 के ऊपर जो फोर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसको फाइंड आउट करना है और फिर उसका x कंपोनेंट है वो कितना होगा वो भी हमें बताना है, किसके प्रोपोर्शनल होगा वो भी बताना है। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज हमें इस Q1 पे फोर्सेज निकालने हैं तो वो Q3 की वजह से होगा और Q2 की वजह से होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल Q2 की वजह से लिखते हैं, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ये हम ऐसे नोटेशन यूज कर रहे हैं सो दैट आप इजीली देख पाए ना। बिकॉज दोनों फोर्सेस के चार्जेस हैं जो अपोजिट हैं, अपोजिट चार्ज हैं, मींस यहाँ पे जो फोर्स होगा वो नेगेटिव होगा और अट्रैक्टिव फोर्स होगा। सो नेगेटिव के Q1 Q2 बाय, दोनों के बीच का डिस्टेंस b है, b² इंटू आई, और ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव आई डायरेक्शन में, बिकॉज ये वाला चार्ज है इसको अट्रैक्ट करेगा। नाउ कमिंग टू दिस चार्ज Q3, सो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3। अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो जो फोर्स होगा दैट विल बी के Q1 Q3, दोनों के बीच का डिस्टेंस a गिवन है a², और साथ में अब यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर नोटेशन यूज करनी पड़ेगी सो दैट हम यहाँ पे इसको कंपोनेंट वाइज रिजोल्व कर सके। तो कंपोनेंट वाइज रिजोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसके लिए डायरेक्शंस प्लॉट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल फोर्स, बिकॉज Q3 Q1 पे लगाएगा और Q1 पे जो फोर्स है, बिकॉज दोनों के नेगेटिव चार्ज है, सेम साइन है, तो अपोजिट फोर्स होगा। तो अब इसका एक कंपोनेंट हमारे पास डाउनवर्ड होगा और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा। सो जो डाउनवर्ड कंपोनेंट है विल बी समथिंग लाइक दिस, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो समथिंग ऐसे होगा। नाउ कमिंग टू एंगल्स, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी यहाँ पे थीटा ही होगा, और ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। सो जो y कंपोनेंट हो जाएगा दैट विल बी f cos थीटा, और जो x कंपोनेंट होगा दैट विल बी f sin थीटा। सो x कंपोनेंट में हमारे पास आएगा sin थीटा इंटू आई, और y कंपोनेंट में हमारे पास आएगा माइनस कोस थीटा इंटू जे। ये फोर्स का एक्चुअल मैग्नीट्यूड था, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअल वेक्टर्स निकाल सकते। नाउ विद दिस, अब हमें ये बताना है कि जो Q1 पे लगने वाला फोर्स है उसका x कंपोनेंट कितना होगा। तो Q2 की वजह से लगने वाले फोर्स का x कंपोनेंट ये है, और Q3 की वजह से लगने वाले फोर्स का x कंपोनेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो टोटल x डायरेक्शन वाला फोर्स हमारे पास हो जाएगा दैट विल बी माइनस के Q1 Q2 b² आई प्लस के Q1 Q3 a² sin थीटा। और यहाँ पे प्रोपोर्शनल पूछा गया है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे Q1 को कॉमन ले लेते हैं दोनों साइड से, एंड वी मेड ए मिस्टेक हेयर, हमने यहाँ पे साइन में मिस्टेक कर दी जब हम Q1 Q2 का फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन अगेन। ये सपोज कीजिए ये हम Q1 ले रहे हैं, ये हमारा Q1 है और ये हमारा Q2 है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के फोर्स के बीच का जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव होगा। मींस Q1 पे फोर्स की डायरेक्शन ये होगी और Q2 पे फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, दोनों के अट्रैक्टिव फोर्स है। तो Q1 का फोर्स पॉजिटिव एक्स में होगा, so that's why this sign should be positive, and ये साइन भी पॉजिटिव ही रहेगा।
नाउ यस, इसको हम पॉजिटिव कर देते हैं। और अब हमें यहाँ पे जस्ट प्रोपोर्शनलिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, Q1 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये और K को भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा Q2/b²। और जो यहाँ पे साथ में I भी था, और ये I वेक्टर हम सेकंड साइड में कॉमन लेंगे, प्लस Q3/a² इंटू साइन थीटा इंटू आई। तो जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा किस वैल्यू पे, Q2/b² प्लस Q3/a² इंटू साइन थीटा। और हेयर इट इज, जो ऑप्शन बी होगा हमारा, दैट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If a charge Q is placed at the center of line joining two equal charges Q such that the system is in equilibrium, then the value of Q। सो ये बोला गया है कि जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, और पहले दो चार्जेस हैं आपके पास, कैपिटल Q एंड दिस कैपिटल Q, और उनके बीच में आपने क्या रख दिया, स्मॉल Q वो रख दिया। अब जो सिस्टम है एज पर स्टेटमेंट, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मींस जो सभी चार्जेस हैं वो अपनी पोजीशन पे ही रहने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंसेस बना लेते हैं। Q2 Q के बीच का जो डिस्टेंस है, कैपिटल Q टू कैपिटल Q, ये हम x ले रहे हैं, और स्मॉल Q को मिडल में रखा गया है, सो दिस विल बी x/2। नाउ एज पर क्वेश्चन कि इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, तो इसके ऊपर भी, कैपिटल Q के ऊपर भी फोर्स जीरो होना चाहिए, स्मॉल Q के ऊपर भी फोर्स जीरो होना चाहिए, और दिस कैपिटल Q के ऊपर भी फोर्स हमारे पास जीरो होना चाहिए। सो F ऑन Q शुड बी जीरो। और इस Q चार्ज पे फोर्स क्या होगा, दैट विल बी ड्यू टू दिस स्मॉल Q चार्ज एंड दिस कैपिटल Q चार्ज। सो इसकी वजह से फोर्स हो जाएगा K Q कैपिटल Q डिवाइड बाय x/2 का स्क्वायर, प्लस K टाइम्स कैपिटल Q डिवाइड बाय x²। और ये जीरो के इक्वल है, तो जब हम उसको जीरो के इक्वल करके सॉल्व करेंगे, सो वी विल गेट K Q x², और ये 4 ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Q x²। सो K Q कैंसल, x² से x² कैंसल, और हमारे पास आ जाता है 4 ऑफ Q इज इक्वल टू माइनस Q, एंड Q इज इक्वल टू स्मॉल Q इज इक्वल टू माइनस Q/4। सो दैट्स हाउ ऑप्शन जो डी है हमारा वो आंसर के साथ मैच करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ charges Q1 and Q2 are at point A and B at of a right angle triangle OAB। तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। Resultant electric field at point O is perpendicular to hypotenuse, then Q1 and Q2 proportional to। तो जो O पे जो फील्ड है वो परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं कि O के लिए जो फील्ड्स हैं वो कैसे होंगे। सो Q1 यहाँ पे है और यहाँ पे Q2 है, और दोनों को हम पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं, तो दोनों से आउटवर्ड फील्ड होगी। सो यानी कि यहाँ से जो फील्ड आएगी O की तरफ वो ऐसे होगी आउटवर्ड, और जो B से O की तरफ फील्ड आएगी आउटवर्ड वो कुछ ऐसे होगी, समथिंग लाइक दिस। नाउ इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट विल बी लाइक समथिंग दिस, जो कि O से पास हो रहा है, और इन दोनों का रिजल्टेंट होगा जो दो हमारे पास डैश्ड ब्लू एरोज है। एंड एज पर गिवन कि जो ये वाला एंगल है यहाँ पे, ये एंगल 90 डिग्री है। ओके, सो अगर ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, नाउ सपोजिंग अदर एंगल्स को, अगर हम यहाँ पे इस एंगल को थीटा लेते हैं और ये एंगल हमारे पास 90 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, और इन शॉर्ट दिस विल बी थीटा। नाउ जो Q1 की वजह से जो फील्ड थी अगर उसको हम E1 बोले, Q2 की वजह से जो फील्ड थी अगर उसको हम E2 बोले, तो यहाँ से हम फ्रॉम दिस पार्ट, ये वाले पार्ट से
वी कैन ईजली फाइंड आउट, हम यहाँ पे ईजली एक ट्रायंगल बना सकते हैं कि ये हमारी, नोट दिस कलर, यहाँ पे बनाते हैं, ये हमारी E1 फील्ड है और ये हमारी E2 फील्ड है, और वी नो कि वेक्टर्स को हम इधर उधर मूव कर सकते हैं। सो जो E2 फील्ड है उसको हम यहाँ पे ना बना के उस फील्ड को हम यहाँ पे बना सकते हैं, एंड जो हमारा रिजल्टेंट फील्ड होगा दैट विल बी, व्हाट हैपन टू दिस, यस वर्किंग। सो जो रिजल्टेंट फील्ड होगा वो ऐसे हो जाएगा। सो फ्रॉम दिस, ये है E1, ये है E2, और ये एंगल है हमारा थीटा। सो टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू E1 बाय E2। नाउ हमें हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई, और E2 और E1 की वैल्यू आ गई, सॉरी नो, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, सॉरी यस, E2 बाय E1 आ गया, इट इज परपेंडिकुलर, यहाँ पे E2 होगा बिकॉज एंगल यहाँ पे है। सो E2 बाय E1। नाउ तो हम E2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। E2 क्या होगा, जस्ट K Q2 बाय X2 स्क्वायर, और सिमिलरली E1 हो जाएगा जो, दैट विल बी K Q1 बाय X1 स्क्वायर। अब यहाँ पे डिवाइड कर दें दोनों को, सो टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू, दोनों में k हमारा कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी Q2 बाय Q1 इंटू Q2 बाय, ये था हमारे पास X2 स्क्वायर, यस, सो X2 स्क्वायर इंटू X1 स्क्वायर। एंड अभी अगर हम ये ट्रायंगल देखें एज ए होल, ट्रायंगल AOB जो हमारे पास एज ए होल ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल AOB, ये वाला एंगल यहाँ पे हमने थीटा ज्यूम किया हुआ है, और ये साइड x2 है और ये साइड x1 है, तो इससे हम टेंजेंट थीटा निकाल सकते हैं, दैट विल बी x1 बाय x2। सो दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू, बिकॉज दोनों टेंजेंट थीटा है, सेम एंगल की बात हो रही है। So comparing both of these, x1 by x2 is equal to q2 q1 इंटू x1 का स्क्वायर, सॉरी हाँ x1 का स्क्वायर, और ये x2 का स्क्वायर है, सो स्क्वायर्स कैंसल्ड हो जाएंगे, और हमारे पास हमें रेशियो निकालना है q1 बाई q2 का। सो यहाँ से q1 बाई q2 क्या आ जाएगा, q1 बाय q2 शुड बी इक्वल टू x1 बाय x2, and okay, yes, q1 by q2 should be equal to x1 by x2, and here it is, जो कि ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन, कंसीडर ए फोर्स F on a charge Q due to uniformly charged spherical shell of radius r carrying charge Q distributed over it, uniformly distributed over it। सो हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, और जो स्फेरिकल शेल है वो अंदर से होलो होता है, सो मीन्स इट्स ए नॉट ए सॉलिड स्फेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एफ, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी इफ क्यू इज प्लेस एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। सो ऐसे हमारे पास कोई शेल है, ये सपोज कीजिए शेल है, और हमने किसी आर डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज क्यू को रखा है, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज आर। ना अभी हमें ये नहीं पता कि ये जो पॉइंट चार्ज पार्टिकल है ये इसके अंदर है या इसके बाहर है। नाउ बिकॉज ये एक शेल है, तो इसके जो इनसाइड फील्ड है वो जीरो होती है, और वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू क्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल इसके अंदर होगा, इसकी रेडियस के अंदर होगा, इसकी रेडियस को
कैपिटल आर मान लेते हैं तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, और जैसे ही वो उससे बाहर जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगना चाहिए। तो फर्स्ट हमारी यही है अजम्पशन। और हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए जब लिखा हुआ है ऑल वैल्यूज ऑफ आर, तो ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो जाता है। एंड जब स्मॉल आर की वैल्यू को कैपिटल आर से कम करके फिर भी पॉजिटिव वैल्यू दी गई है फोर्स की, तो ये भी गलत हो जाता है। एंड हियर इट इज फॉर आर लेस देन आर, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू को वेरी किया गया है, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। तो ओनली एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन सी, कि जब आप इससे बाहर होंगे तो डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप किसी पॉइंट आर पे हैं, अगर आप वैल्यू लेते हैं दैट आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हो जाएगी, इट विल बी के टाइम्स, वेट के इज 1/4 होता है के टाइम्स इस जो सरफेस के ऊपर टोटल चार्ज है दैट इज कैपिटल क्यू बाय डिस्टेंस दैट इज आर स्क्वायर। सो जो फोर्स हो जाएगा दैट विल बी के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। एंड हेयर इट इज, जो हमारे आंसर के साथ मैच करता है। तो जो ऑप्शन सी होगा दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So to charge thin infinite plane sheet of uniform surface charge density plus sigma minus sigma, which of the following best represents the electric field lines of the system? हमें electric field line system की बतानी है। और यहाँ पे जो important चीज़ है, infinite sheets हैं और क्या है, thin sheets हैं, thin infinite sheets हैं। तो thin infinite sheet के लिए जो electric field होती है वो constant रहती है उसके outside, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, और होती है गिवन बाय सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दी जाती है। बिकॉज हमारे पास दो शीट्स हैं, और अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से तो ऑप्शंस में माइनस सिग्मा और ये प्लस सिग्मा है, और हर ऑप्शन में माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा है। तो हम उसी हिसाब से डायग्राम बनाते हैं अपना, कि जो वर्टिकल शीट है इसकी हम माइनस सिग्मा लेते हैं डेंसिटी, और हॉरिजॉन्टल की प्लस सिग्मा डेंसिटी लेते हैं। और हमारे पास यहाँ पे 4 रीजन्स बनेंगे, ये रीजन 1 होगा, ये रीजन 2 होगा, ये 3 होगा, और ये रीजन नंबर 4 होगा। नाउ अगर रीजन नंबर 1 में बात करें तो जो पॉजिटिव शीट है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अपवर्ड जाएगी, मींस आउटवर्ड जाएगी, सॉरी नॉट अपवर्ड, कैन से आउटवर्ड होगी, शीट से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। और जो नेगेटिव शीट है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो शीट के इनवर्ड होगी, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। और जो ये वैल्यू है, बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ऊपर वाली शीट की जो नेगेटिव जिसकी डेंसिटी है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो पॉजिटिव है उसकी हो जाएगी प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बिकॉज हमें यहाँ पे फील्ड लाइन बतानी है, इन शॉर्ट हमें फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। तो ये देखिए एक वेक्टर आपका ऊपर की तरफ जा रहा है और एक वेक्टर आपका नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे जो फील्ड की डायरेक्शन है उसका अगर वेक्टर रिप्रेजेंट करें आप, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो जाएगी फर्स्ट रीजन में। नाउ अगर हम सेकंड रीजन में देखें तो सेकंड रीजन में अगेन जो पॉजिटिव जो शीट है उससे फील्ड है जो आउटवर्ड होगी, और जो नेगेटिव शीट है इसके लिए फील्ड शीट के इनवर्ड होगी। तो जो यहाँ पे जो नेट डायरेक्शन है फील्ड की वो समथिंग ऐसे हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ इन दो इंडिकेटर्स का ही यूज़ करें और देखें तो सर्कुलर फील्ड नहीं है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ऑप्शन हमारे पास ये बचता है और एक ऑप्शन हमारे पास ये बचता है, कि अब हम इन्हें अब हमें इन दोनों ऑप्शंस में चूज करना होगा कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। नाउ अब ये डिसाइड हम कैसे करेंगे कि कौन सा ऑप्शन राइट है, दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप। बिकॉज यहाँ पे भी आप देखें तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और इस सिनेरियो में भी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, जस्ट डायरेक्शन अलग अलग है। तो जो स्लोप है यानी कि टेंजेंट थीटा है शुड बी 1, और थीटा यहाँ पे 45 होना चाहिए। और इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि जो एक्स और वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट्स हैं वो दोनों इक्वल होने चाहिए। और ये जस्ट आप प्योरली मीन्स आपका जजमेंट है, बट अगर आप देखें कि जो ऑप्शन सी है इसके अंदर ये जो इंटरसेप्ट्स हैं एक्स और वाई के फील्ड्स के लिए वो इक्वल, मोर इक्वल लग रहे हैं एज कंपेयर टू ऑप्शन ए। सो फॉर दिस ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So
A particle of charge q and mass m is subjected to a electric field, और जो फील्ड है वो वेरिएबल फील्ड है x डायरेक्शन में, एंड इट इज डिक्रीजिंग फील्ड इन x डायरेक्शन। डिक्रीजिंग कैसे है, अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि 1 माइनस समथिंग हो रहा है, मीन्स ये जो ई नोड के साथ जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो डिक्रीज होता जाएगा टाइम के साथ विद डिस्प्लेसमेंट x। एंड यस, एंड बोथ साइड में डिक्रीजिंग फील्ड है बिकॉज स्क्वायर है। Initially particle at rest x is equal to 0. Other than this initial position, the kinetic energy of a particle becomes 0 when the distance of the particle from the origin. तो हमें ये बताना है कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी कब, वो डिस्टेंस बताना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कब जीरो हो जाती है। अब काइनेटिक जीरो एनर्जी जीरो होने का मतलब क्या है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। सो अगर हाफ एम वी स्क्वायर जीरो के इक्वल हो जाता है तो मास जीरो नहीं हो सकता, मीन्स वेलोसिटी जीरो होगी। सो हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी के लिए एक एक्सप्रेशन बनाना होगा समहाउ, और फिर उसको जीरो के इक्वल पुट करना होगा, और वहां से किसी अदर कांस्टेंट की होपफुली हमें एक्स की ही वैल्यू मिलेगी, तो उसको हम आंसर के साथ फिर कंपेयर करेंगे। नाउ वी नो जो पार्टिकल के ऊपर फोर्स होता है दैट इज एफ क्यू इंटू ई, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। और अगर हम किसी एक रैंडम पॉइंट जहाँ पे डिस्टेंस एक्स लें तो वहाँ पे ये फोर्स हो जाएगा, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ई एक्स, और ये हो जाएगा क्यू ई नोड 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर। नाउ जो फोर्स होता है, अब हम फोर्स को सेकेंड लॉ के टर्म्स में लिख सकते हैं, दैट विल बी न्यूटन सेकेंड लॉ के टर्म में मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इज dv by dt is equal to q e node 1 minus ax square। and from this अगर हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो इस साइड हम जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे हमारे पास dv होगा तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इजिली, बट राइट हैंड साइड हमारे पास x और dt होगा। इस साइड में जो वेरिएबल है वो x है बिकॉज हम x को चेंज कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास dt है तो हम डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, चेन रूल अप्लाई करना होगा, और इस dv बाई dt को हम x में कन्वर्ट करेंगे, dv बाई dx में कन्वर्ट करेंगे। सो m dv dx से डिवाइड एंड dx से मल्टीप्लाई, ऐसे यूजिंग चेन रूल, इज इक्वल टू क्यू ई नोड 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर। और नाउ वी नो dx बाई dt वेलोसिटी होता है, सो दिस विल बिकम एम वी डी वी, इसकी वैल्यू v हो गई, और ये हो गया एम वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्यू ई नोड 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सो वी डी वी विल बी इक्वल टू क्यू ई नोड बाय एम, बिकॉज ये तो कांस्टेंट है, एंड इंटीग्रेशन हो जाएगा और यहाँ से अलग से बच जाएगा 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और बोथ साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे हम कि वेलोसिटी और यहाँ पे x का इंटीग्रेशन। और यहाँ पे हम लिमिट्स पुट नहीं कर रहे बिकॉज हमें बाद में इसको जीरो करना है, दैट्स वाई हम नॉर्मल रैंडम वैल्यू पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो दिस विल बी वी स्क्वायर बाई 2 एंड दिस विल बी क्यू ई नोड एम एक्स माइनस ए एक्स क्यूब बाय 3, एंड फ्रॉम दिस जो हमारे पास वी स्क्वायर है या वी की वैल्यू आ जाएगी, वी विल बी 2 QE नोड बाय m, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस ए एक्स क्यूब बाय 3 पावर हाफ। और यही पूछा गया था आपके क्वेश्चन में कि वेलोसिटी जीरो कब होगी, व्हेन द पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होगी, तब जो वेलोसिटी जीरो होगी। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है। सो वेलोसिटी कब जीरो होगी, ये टर्म जीरो नहीं हो सकती वेलोसिटी वाली, तो इनसाइड वाली टर्म को जीरो होना पड़ेगा, और इन शॉर्ट x माइनस ए एक्स क्यूब बाय 3 शुड बी जीरो। यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब बाय 3, एंड ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी नॉट ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर,
x square is equal to 3 by a और x is equal to रूट 3 बाई ए। और अब कंपेयर करते हैं इसको ऊपर आंसर के साथ। सो हियर इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सो विद दिस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को कवर किया वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अंडरस्टैंडेबल रहा होगा। अगेन अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या सजेशंस हैं हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट एंड आंसर ऑल ऑफ दोस। आल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, and if possible do make some donation by scanning these QR codes and donating some amount. It helps us a lot to keep on making these videos and keep on continuing this series. So with this again, thanks for watching, and we will meet in next video.